نوازا, خیر کثیر سے ہم نے آپ کو نوازا, بہت سی بھلائیوں سے. اور ان بھلائیوں کی اگر گنتی لگاؤ تو آپ گنتی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بھلائیوں سے نوازا گیا. اور آج آپ آئے ہو, نوٹ کرنے والے بھی آئے ہیں, کچھ کیچڑ اچھالنے والے بھی آئے ہیں, جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی آئے ہیں, ایسے لوگ بھی آئے ہیں. اور سن لو آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو کتنی خیر کثیر سے نوازا گیا. میرا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا, حدیث ہے اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث دارمی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے, جس کو مولانا صادق سیالکوٹی نے بھی اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے. لکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے سوال کیا, اللہ کے نبی آپ نے اپنے آپ کو کیسے پہچانا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں وادی بطحا کے ایک کنارے ایک جانب کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے آئے, ایک تو بیچ میں رہ گیا, دوسرا زمین پر آیا. ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ہوا ہوا, کیا یہ وہی نبی ہے جس کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا قال نعم, ہاں یہ وہی نبی ہے کہ جس کی طرف مجھے بھیجا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے پھر سوال کیا, ایک فرشتے نے کہا ذنہ برجل من امہ, اس آدمی کو ترازو کے ایک پرلے پر اسی کے امت کے ایک آدمی کے برابر میں رکھ کر تولو کہ کون بھاری ہے. فرمایا مدنی کریم نے اور سن لو حدیث کا حوالہ کسی ہدایہ کا نہیں, در مختار کا نہیں, شرح بقایا کا نہیں, قرآن کا حوالہ, حدیث کا حوالہ. اور سن لو کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک طرف بٹھا دیا گیا ترازو کے پلڑے پر, اور دوسرے آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ بٹھا دیا گیا. ایک پلڑے پہ وہ, ایک پلڑے پہ میں, فوزن تو بھی فرجاتو, مجھے بھی تولا گیا, اس کو بھی تولا گیا, میں بھی ترازو پہ, وہ بھی ترازو پہ, میں بھی تولا گیا, وہ بھی تولا گیا. فرجحتو, میں اس کے اوپر غالب آ گیا, میں اس کے اوپر بلند آ گیا, میرا وزن اس کے اوپر بھاری بیٹھا. فرشتے نے کہا ذنہ بیاشر, اس آدمی کو 10 آدمیوں کے ساتھ, اس رسول کو, اس نبی کو 10 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پہ تولو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوزنت بهم فرجحتهم, مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پہ رکھا گیا. 10 آدمی ترازو کے ایک پلڑے پہ اور میں ایک پلڑے پہ, 10 آدمی ادھر میں ادھر. فرجحتهم, میں 10 آدمیوں پر بھی غالب آ گیا, یعنی میرا پلڑا بہت اوپر اٹھ گیا اور 10 کا پلڑا نیچے رہ گیا. فرشتے نے کہا زنو بھی میاں, اس آدمی کو 100 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پہ رکھو. اور کائنات کی امام نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, سرور کائنات نے فرمایا, محسن انسانیت نے فرمایا کہ 100 آدمی ایک طرف اور ایک میں اکیلے ایک پلڑے پہ, میں ایک طرف, 200 آدمی ایک طرف. فوزنت بهم فرجحتهم, 100 آدمی بھی تولے گئے, میں بھی تولا جا رہا ہوں. فرجحتهم, میں 100 آدمیوں پر بھی غالب آ گیا, میں 100 آدمیوں سے بھی زیادہ وزنی بیٹھا, میں 100 آدمیوں پر بھی بھاری بیٹھا. فرشتے نے کزنو بیالف, اس کو 1000 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پہ رکھ کے تولو, مجھے 1000 آدمیوں کا پلڑا ایک طرف. اللہ کے نبی نے کہا, سرور کائنات نے کہا, امام کائنات نے کہا کیا 1000 ایک طرف, ایک میں اکیلا ایک طرف. فوزنت بهم فرجحتهم, 1000 کا پلڑا اٹھ گیا, میں بھاری بیٹھا, اور میں تو اتنا وزنی تھا, میں تو اتنا بھاری تھا کانی انظر الیہم, میں نے ان کی طرف دیکھا ینتشرون علیہ, گویا کہ وہ مجھ پر منتشر ہو گئے, گر گئے ہیں. یعنی اتنا بھاری تھا جیسے کوئی بھاری چیز کسی ہلکی چیز کے مد مقابل میں آپ ترازو کے پلڑے پر رکھ دیں تو ہلکی چیز اچھل جاتی ہے. میں اتنا بھاری تھا کہ 1000 کا پلڑا اچھل گیا, منتشر ہو گیا, ادھر ادھر سب آدمی بکھر گئے. فرشتے نے کہا اگر اس آدمی کو پوری امت کے ساتھ ترازو کے پلڑے پر رکھ کے تولو گے تو یہ آدمی پوری امت پر سب سے بھاری بیٹھے گا, سب سے بھاری بیٹھے گا. یہ فضیلت, یہ شرف, یہ مقام, یہ مرتبہ اگر ملا ہے کسی کو تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور لاؤ دنیا کے کسی بھی امام کی زندگی پر ڈالو, کسی بھی محدث کی زندگی پر ڈالو, کسی بھی پیر کی زندگی پر ڈالو, کسی بھی ولی و صوفی کی زندگی پر ڈالو, یہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا. اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں ایک مسئلہ مستنبط کر سکتا ہوں. اور سن لو, تمہارے کانوں میں اگر میری آواز جا رہی ہو تو آپ بھی کان کھول کر سن لیجئے کہ اللہ کے نبی کا وزن اتنا بھاری کہ پوری امت بھی اس وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس طریقے سے میرے نبی کا مقام اونچا ہے, من حیث الرسول, اسی طریقے سے اگر نبی اکرم کی ایک بات, صرف ایک بات یا ایک قول یا ایک عمل یا ایک فعل آپ کا
सिर्फ तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाए और पूरी दुनिया की इमामों की बातें, पूरी दुनिया के मुहद्दिसों की बातें, पूरे दुनिया के पीरों की बातें, पूरे दुनिया के वलियों की बातें और सूफियों की बातें अगर तराजू के दूसरे पल्ले पे लाकर रख दी जाए तो कायनात के रब की कसम, काबे के रब की कसम, वो तमाम पीर, वली, इमाम और मुहद्दिसों के अक़वाल भी मिलकर मेरे नबी के कौल का वजन पूरा नहीं कर सकते, एक कौल के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। ये दर्जा, ये श्रेष्ठता, ये बढ़ोतरी अगर मिली है तो सिर्फ इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। फिर बताइए हमें दामन किसका थामना चाहिए? नहीं, हमारी मोहब्बत तो हर जाई है, ये भी ठीक वो भी ठीक। ये दोगली पॉलिसी ना अपनाओ, ये हर जाई मोहब्बत ना करो, ये भी ठीक वो भी ठीक। सिर्फ एक ही से लव लगाओ, ही और भी में बहुत फर्क होता है। शायद आप जानते होंगे, अगर कोई तवाइफ हो तो उसके पास जो चला जाए, हाँ मैं तेरी भी हूं, आप जाइए मैं तेरी भी हूं, 100 का नोट दूसरा दे मैं तेरी भी हूं, तीसरा आया मैं तेरी भी हूं, लेकिन आपकी हकीकी बीवी आपसे कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो भी नहीं कह सकती तेरी भी हूं, वो कहेगी मैं तेरी ही हूं। ही और भी में फर्क समझ रहे हैं? कहो ये भी ठीक वो भी ठीक, कहो नबी भी सही और ये भी सही, हम इनकी भी बात मानेंगे इनकी भी बात मानेंगे। ये दोगली पॉलिसी इस्लाम ने नहीं सिखलाई। इस्लाम ने तो ये कहा है कि अगर अल्लाह के अलावा तुमने एक दूसरे के सामने दामन को फैलाया और दूसरे से मांगा तो ये शिर्क बिल्लाह है। और इस्लाम ये कहता है कि नबी अकरम आखिरी नबी हैं और उनकी नबूवत के बाद किसी ने दूसरे से दिल को लगाया और दूसरे की बातों पर अमल करने की कोशिश की नबी को छोड़कर, तो वो शिर्क बिर्रिसालत कर रहा है। अगर एक तरफ शिर्क बिल्लाह है तो दूसरी तरफ शिर्क बिर्रिसालत भी हो रही है। गौर कीजिए, एक साहब यही के बोले कि अब तो वहाबियों के पास मौलवियों की कमी पड़ गई, तालिबे इल्मों को बुलाने लगे। अल्लाह का शुक्र है तालिब इल्मों को तो कोपागंज के लोग भी बुला रहे हैं। क्या किया जाए? हमने कहा कि हाँ हमारे मौलवियों की कमी पड़ गई तो चलो तालिब इल्म को बुलाया। हमें लगता है तुम्हारे मौलवी तो सब फीके पड़ गए जहां के हदीस को स्टेज पे दावत दी जा रही है। बहरहाल दोस्त और बुजुर्गों, एक तालिब इल्म का जब यह हाल हो तो हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम का क्या हाल हो सकता है? जरा इसको तो सोच लिया होता। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेशुमार फजाइल से नवाजा गया, उसमें एक तरफ ये भी फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है सबसे ज्यादा वजनी करार दिया। ये भी एक जो है नबी अकरम की फजीलत है। और मेराज की दौलत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, बड़ी बाबरकत है वो जात जो रातों ही रात ले गई अपने बंदे को, रातों ही रात ले गई अपने बंदे को सिदरतुल मुंतहा। और उससे भी आगे सुन लो, यहां पर एक एतराज लोग लगाते हैं कि अल्लाह के नबी अगर नूर ना होते तो कैसे चले जाते आगे। असरा के लफ्ज ने उस चीज को खत्म कर दिया। सुभान अल्लाजी असरा, बड़ी बाबरकत है वो जात जो ले गई, बस जो ले गई, यानी अल्लाह तबारक बताला बड़ा ही बाबरकत है। कैसे ले गया ये वो जाने। इन्नल्लाह ला कुल्लि शैइन कदीर, हमारा तो अकीदा ये कि वो हर चीज पर कादिर है। वो ले गया जैसे भी ले गया। कुरान ने कह दिया हमें ईमान लाना है, हमें मानना है, आमन्ना व सद्दकना कहना है। और अल्लाह तबारक बताला ने कहा सुभान अल्लाजी असरा, बड़ी बाबरकत है वो जात जो ले गई। और अल्लाह इस वहमो गुमान से बिल्कुल पाक है कि कैसे ले गया। उसके बारे में ये वहमो गुमान करना भी शिर्क है। और सोच लो ये भी गुमान ना करो कि कैसे ले गया। अल्लाह इस वहमो गुमान से पाक है। बस वो ले गया, कैसे ले गया, उसकी कुदरत, उसका कमाल जैसे भी ले गया। सुन लो, ये अल्लाह तबारक बताला ने मेराज की दौलत भी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। बड़े बड़े माहिरीन ने पल किया, आज जमीन से गए और चांद तक जा सके। 2,40,000 मील पर जाने के बाद कदम डगमगा गया। चांद से ऊपर उनकी भी तहकीकात सामने नहीं आ सकी कि चांद से ऊपर भी गए हों। माहिरीन ने पल किया तो कर चांद से ऊपर उनका कदम नहीं गया। और मेरा नबी वो भी उम्मी, और उस दौर में जिस दौर में साइंस का दौर नहीं था, जिस दौर में एमएससी और बीएससी नहीं कराया जाता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दौर नहीं था, हिंदू विश्वविद्यालय का दौर नहीं था, हैदराबाद और उस्मानी यूनिवर्सिटी का दौर नहीं था, अजहर का नहीं, मदीना का नहीं, जिस दौर में यूनिवर्सिटियों का दौर नहीं था, उस दौर में मेरा नबी न जाने कितने चांद, कितने सूरज, कितने कहकशाओं को छोड़ते हुए अल्लाह जो है सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। ये था नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक भलाई ये भी दी गई। अरे नबी, कौन कहता है कि मरने के बाद
تو بے نام و نشان ہو جائے گا. اے نبی کون کہتا ہے مرنے کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا؟ اے نبی کون کہتا ہے تجھے دنیا بھول جائے گی؟ اے نبی کون کہتا ہے مرنے کے بعد تیرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ دیکھ ہم نے تجھے معراج بھی دی, معراج سے بھی نوازا, تیرا وزن بھی سب سے اونچا, تیرے قول کا وزن بھی اتنا کہ پوری دنیا کے امام اور محدث مل کر بھی پورا نہ کر سکیں. ان تمام بھلائیوں سے میں نے تجھے نوازا. اتنا ہی نہیں, ایک چیز اور سمجھ کہ میں نے تجھے خیر کثیر اور دی. من دل علی خیر, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بھلائی کی طرف بلائے, کسی کو رہنمائی کی طرف بلائے, اس کی رہنمائی کرے, اور وہ آدمی اگر حق راستے پہ آ جائے تو من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی, تو اس کو بھی, اس بلانے والے دائی کو بھی, یعنی اس کے اجر کے برابر ثواب ملتا ہے. دائی کو بھی, یعنی اگر کسی آدمی کے نیک نصیحت کرنے پر اگر کوئی آدمی اس راستے پر چلا آیا تو جب تک وہ نیک کام کرے گا جتنا ثواب اس نیک کام کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب دائی کو بھی ملے گا, دعوت دینے والے کو بھی ملے گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف بلانے والا, یعنی معروفات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنے والا, اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو اب آپ غور کریں, ہم نے آپ کو بلایا, آپ نے نیک کام کیا, آپ کا ثواب جتنا آپ کو ثواب مل رہا اتنا مجھے مل رہا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ذرا نظر ڈالو, جب صحابہ کرام موجود تھے تب بھی اللہ کے صحابہ کرام کی نیکیوں کا عمل نبی اکرم کو ملتا تھا, اور پھر انہی کی نسل جو چلی آ رہی ہے اور ہم جو انہی کے جو ہے جو دور سے چلے آ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے مسلمان پوری دنیا کے اندر ہیں, آل ورلڈ کے اندر کتنے نماز پڑھتے ہیں, کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, کتنے مسلمان زکات دیتے ہیں, کتنے مسلمان حج کرتے ہیں, اور کائنات کا رب گواہ ہے جتنے مسلمان نیکیوں کے اعمال نیکیاں کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں, جتنا ثواب ان مسلمانوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا رہے گا. اس لیے کہ اصل دائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اے نبی کون کہتا ہے کہ انتقال کے بعد اور تیرے مرنے کے بعد تو بے نام و نشان ہوگا؟ دیکھ تجھے ثواب ملتا رہے گا, تیرا دنیا نام لیتی رہے گی, تجھے دنیا یاد کرتی رہے گی, پھر تیرا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ اور تجھے دنیا سے کون تیرے نام کو مٹا سکتا ہے؟ اور اتنا ہی پر بس نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سی بھلائیوں سے نوازا وہاں ایک بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں ذکر کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی بیان کر رہا ہے. اے نبی غور کر, تیرا مقام اتنا اونچا ہے کہ خود اللہ تیرے اوپر درود بھیجتا ہے, وہ ملائکہ اس کے فرشتے بھی تیرے اوپر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مسلمانوں, اے ایمان لانے والوں, تم بھی نبی پر درود بھیجو, جس پر اللہ سلام بھیجے نبی پر, جس پر فرشتے درود بھیجے نبی پر, جس پر مسلمان ہمیشہ درود بھیجیں, قیامت تک یہ درود کا سلسلہ قائم رہے گا. اے نبی کون کہتا ہے کہ تو بے نام و نشان ہو گیا؟ کون کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا؟ کون کہتا ہے مرنے کے بعد تیرا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا؟ ارے ہم تیرے نام و نشان کو باقی رکھیں گے. قیامت کے دن تمام نبیوں کے لواء الحمد, جو اللہ کے نبی کو جھنڈا دیا جائے گا, تعریف کا جھنڈا, اس جھنڈے کے نیچے اے نبی سارے انبیاء کرام ہوں گے. یہ فضیلت بھی میں نے تجھے دی ہے, اس شرف سے بھی میں نے تجھے نوازا ہے. قیامت کے دن جہاں سارے انبیاء کھڑے ہوں گے وہاں تو ان سارے انبیاء کا خطیب ہوگا, امام ہوگا, خطیب ہوگا, تو ان کو خطبہ دے کر سنائے گا, خطبہ پڑھے گا. اے نبی تو خطیب ہوگا ان تمام نبیوں کا. کون کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا کوئی نام و نشان لینے والا نہ ہوگا, تیرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جنت کا سب سے پہلے دروازہ بھی اے نبی تو ہی کھلوائے گا. کون کہتا ہے کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ تیری فضیلتیں کم ہو جائیں گی؟ اتنا ہی نہیں, گناہگار امتیوں کی سفارش کرنے کا حق بھی تجھے دیا جائے گا جو اور نبیوں کو نہیں ملے گا. تمام نبی تیری طرف بھیج دیں گے اور تو ہی کہے گا, اپنے ماتھے کو سر کو زمین پہ گرا دے گا, رکھ لے گا. آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد, اے محمد تم اپنا سر اٹھاؤ, جو مانگو گے دیا جائے گا. اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیں گے, اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کرائیں گے. یہ سفارش کا حق بھی اگر کسی کو ملا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن
मिलेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इतनी ही नहीं, पता नहीं कितनी खैर कसीर से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा है। अगर आप नजर डालें तो वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजाइल और बरकत को आप गिन नहीं सकते, जो कुरान और हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। और खुद आप नजर डालिए, अजान में एक मुअज्जिन अजान देता है तो जहां वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुमले अदा करता है, वहीं वो ये जुमले भी अदा करता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के साथ नबी का नाम भी बोलेता है। अरे नबी, कौन कहता है तेरे मरने के बाद तेरा नाम मिट जाएगा? अरे दुनिया के अंदर जितने भी मुअज्जिन हैं, जब वो मस्जिदों के मीनारों पे चढ़ेंगे तो तेरा नाम लेंगे। कोई मिनट और कोई सेकंड ऐसा नहीं जाएगा जब तेरा नाम न लिया जाए। फिर कौन कहता है कि तेरा नाम इस दुनिया से मिट जाएगा? नहीं, अरे रसूल, तेरे नाम को इस दुनिया से मिटने वाला तो कोई है ही नहीं। तेरे नाम को इस दुनिया से कोई खत्म ही नहीं कर सकता है। जो दोस्त और बुजुर्गों, अब आपने देखा नमाज आदमी पढ़ता है, उसमें भी नमाज को उस वक्त तक वो मुकम्मल नहीं समझता जब तक कि वो दरूद शरीफ न पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये दरूद नहीं पढ़ता जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। फिर कैसे ऐ रसूल तू अफसोस कर रहा है कि ये काफिर कहते हैं कि मरने के बाद नामो निशान मिट जाएगा, तू कैसे ये तसव्वुर कर बैठा है? अरे हम तेरे नामो निशान को जिंदा बाकी रखेंगे। हमने तुझे यतीम पाया, ठिकाना दिया। फिर आप कुरान करीम को पढ़िए, इन्ना तैना कल कौसर, नबी हमने तुझे खैर कसीर से नवाजा। कयामत के दिन सबसे पहले कब्र से उठने वाला तू, कयामत के दिन सबसे लिवाउल हम्द तेरे हाथ में होगा, मैदान महशर में तमाम अंबिया का खतीब तू होगा। और इतना ही नहीं, मेराज भी तुझे नवाजा, अजानों में तेरा नाम लिया जाता है, नमाज में तेरा नाम लिया जाता है, तमाम खैरियत, तमाम खैरों भलाइयों से तुझे नवाजा। इन तमाम चीजों के अलावा एक भलाई हमने और भी दी, एक चीज हमने तुझे और भी दी। वो चीज क्या है? इन्ना तैना कल कौसर, अरे नबी खैर कसीर के साथ साथ हमने हौजे कौसर भी तुझे दिया है, हौजे कौसर से भी तुझे नवाजा है। जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस जो सबसे आला जन्नत है, उस जन्नत के अंदर एक नहर बह रही है, उस नहर का नाम है नहरे कौसर। नहरे कौसर का पानी सिर्फ मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और नहरे कौसर से जो जो है शाखाएं बहकर जा रही दूसरी जन्नतों के अंदर, नहरे कौसर से कुछ शाखाएं फूटकर दूसरी जन्नतों में गई हैं, वो दूसरे नबियों के लिए वो पानी होगा। नहरे कौसर मेरे नबी के लिए, और नहरे कौसर से फूटकर जो शाखाएं दूसरी जन्नत में गई हैं वो दूसरे नबियों के लिए। और नहरे कौसर से दो परनाले बहते हुए हौजे कौसर में मैदान महशर में गिर रहे हैं, वो पानी होगा उम्मते मुस्लिमा के लिए, उम्मते मुहम्मदिया के लिए। यानी एक है नहरे कौसर जिसका पानी नबी अकरम के अलावा कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, और दूसरा उसी शाखों से फूटकर दूसरी जन्नतों में पानी जाता है वो दूसरे नबियों के लिए। और नहरे कौसर से दो परनालों के जरिए आने वाला पानी जो मैदान महशर में गिरता है, उस जो एक हौज में गिरता है, उस पानी को कहा गया हौजे कौसर, जो आप अपने उम्मतियों को पिलाएंगे। आपने फरमाया उसकी लंबाई इतनी लंबी है कि 1 महीने तक अगर आप चलते रहो तो बराबर तो उसके हौज की लंबाई होगी, फिर 1 महीने तक बराबर चलो तब उसकी चौड़ाई पे तुम पहुंचोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो पानी ऐसा कि दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, जो एक मरतबा पी लेगा उसको कभी जिंदगी में 50,000 साल का दिन होगा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। सुन लो मुसलमानों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन लो, कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामत कमिक़दारि मील, कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। आज ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, तब तो ये हाल है कि इतनी ऊंची गर्मी से हमें मई और जून की गर्मी में बनियान तक उतरवा देता है, हम अपनी बंडी तक उतारने पर मजबूर हो जाते हैं। यही सूरज कल कयामत के दिन ओनली 1 मील, 1 मील के फासले पर होगा। पेशानियों से पसीना गिर रहा होगा, कुछ टखनों के बराबर डूबे होंगे, कुछ घुटनों के बराबर डूबे होंगे, कुछ कमर के बराबर डूबे होंगे, कुछ कांधे के बराबर डूबे होंगे, और कुछ उसी में अपने अमल के मुताबिक गोता लगा रहे होंगे। जरा गौर तो कीजिए, ऐसे नाजुक मौके पर नबी अकरम ने फरमाया जमीन भी तांबे की तरह होगी, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, और मैं हौज़े कौसर पे पानी पिला रहा हूँ, मेरे सामा हूँगा, मैं पानी पिलाने का काम कर रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा, अबू बकर मेरे साथ होंगे। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मम्मर अलैया शरीबा,
जो मेरे पास से गुजरेगा मैं उसको पानी पिलाऊंगा। वमन शरिब ला यज़्मा अबदा, और जो पानी पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी जो पानी पी लेगा। मम्बर शरिब वमन शरिब ला यज़्मा अबदा, जो एक मर्तबा पानी पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, जरा गौर तो करो। ओ अर्श वाले तेरे नबी का भी क्या कहना, कहा मेरी उम्मत ने वुजू बनाया होगा नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ते वक्त वुजू बनाया होगा, जहां जहां तक वुजू का पानी पहुंचा होगा वहां वहां तक मेरे उस उम्मती के आज़ा चमक रहे होंगे, आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, सूरज की तरह, थाली की तरह चमक रहे होंगे, सोने की तरह चमक रहे होंगे। मैं उनकी चमक से पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मत के अफराद हैं, ये मेरी उम्मत के नेक सज्जन हैं, ये लोग मेरे पास आएंगे, मैं पानी पिलाऊंगा। लेकिन एक मौके पर आपने फरमाया एक कौम दौड़ती हुई मेरे पास आएगी, मैं उनको पहचानता हूंगा और वो मुझे पहचानती होगी, यानी मैं उनको जान जाऊंगा, वो मुझे पहचान लेगी, यानी उसके आज़ाद चमक रहे होंगे, नमाजें पढ़ी होंगी, वुजू बनाए होंगे, सब कुछ, लेकिन युहालु बैनी व बैनहुम, मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, एक चीज हाइल हो जाएगी और वो घसीटते हुए ले जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते मैं कहूंगा अरे फरिश्तों, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, इनके आज़ाद चमक रहे हैं, ये तो दुनिया में नमाजें पढ़ा करते थे, ये तो दुनिया में रोजे रखा करते थे, आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, फिर क्या बात है कि इनको तुमने रोक लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदथु बाद ज़ालिक, अल्लाह के नबी ये आपको नहीं मालूम कि आपके इंतकाल के बाद यही वो लोग हैं जिन्होंने दीन में नई नई बिदअतें ईजाद कर रखी थी, दीन में नए नए कारनामे ईजाद कर रखे थे। 18 मीटर का ताजिया इन्हीं लोगों ने बनाया था, लंबे लंबे ताजिए बनाकर घुमाया करते थे, यहाँ पुलिस वालों को भी परेशानी, बेचारे तार काटने पर मजबूर हो जाते थे, ये रास्ता रुकवाना, तारों को कटवाना, ये क्या भला मेरे नबी बताकर जाएंगे। और रस्मी मोहब्बत करने वालों, और अपनी छाती ठोकने वालों, जरा सुनो मेरे आका ने क्या कहा, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बाद ज़ालिक, फरिश्ता मुझसे कहेगा ऐ नबी आप नहीं जानते कि आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई बिदअत ईजाद कर रखी। मेरे नबी को कुरान डांटे और लाओ ऐ रूसिया हो, तुम्हारे रामचंद्र को भी किसी ने डांटा हो, गणेश को भी डांटा हो, किसी ने डांटने वाला, ईसा को डांटने वाला कोई मौजूद हो, और कोई माइकल लाए जुर्रत तो करे कि हाँ फला परमेश्वर ने फला जगह डांटा, लेकिन आओ मेरा नबी जिसको अल्लाह ने कभी मोहम्मद ना कहा हो, मेरा नबी जिसको अल्लाह मुज़म्मिल कहे, मेरा नबी जिसको अल्लाह इतना प्यार करे कि मुद्दस्सिर कहे, मेरा नबी जिसको अल्लाह इतना प्यार करे कि उसको बशीर और नजीर के लक़ब से मुलक़्क़ब करे, याद करे, और उसको दाई और सिराज मुनीर कहे, वो नबी वो अल्लाह ये भी कह रहा है, ये भी कहता है, ये भी कहता है, सुन लो ऐ लोगों, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी कहा अगर मेरा नबी अपनी तरफ से एक बात भी कह दिया होता, मेरी तरफ गढ़कर मेरी तरफ निस्बत करके के बात भी कह दिया होता तो लक़ताना मिनहुल वतीन, तो हम अपने नबी की भी गर्दन काट डालते, हम अपने नबी की भी शहरत काट डालते, हम अपने नबी का भी दिल काट डालते। ये किसने कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने। वो अल्लाह जो इतना प्यार करता हो, जो इतना ज्यादा महबूब समझता हो अपने नबी को कि ये मोहम्मद ना कहा हो, उसने बशीर नजीर मुज़म्मिल मुद्दस्सिर के लक़ब से याद किया हो, वो डांट भी रहा हो, यहां तक कह रहा है ऐ नबी अगर तूने भी शिर्क किया तो तेरे भी तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम भी खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। ये कौन कह रहा? कुरान कह रहा है। और जाओ अपने इमामों का, अपने मौलवियों का तर्जुमा उठाकर देख लो, ये लिखा है या नहीं लिखा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वक्त आया तो नबी को भी नहीं छोड़ा गया, वक्त आया तो नबियों पर भी डांट और फटकार पड़ी, इसलिए कि इस्लाम एक क्लियर मजहब है, इस्लाम एक फिल्टर मजहब है, इस्लाम अपने अंदर दूसरी चीजों की दखल अंदाजी को शामिल नहीं करता। बड़े अजूबे की बात है, एक मौके पर जाना हुआ जामिया मिल्लिया, उस वक्त जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं इंग्लैंड की यूरोप के दौरे पर, मौलवी अब्दुल रशीद साहब अज़हरी ने कहा कि तुम ही चले जाओ, वहां थोड़ा सा फंक्शन वगैरह था, वहां जाना था, चला गया। नवाब साहब एक कम्युनिस्ट लड़का तकरीर करते हुए, जानते हो क्या कहता है कम्युनिस्ट लड़का? इस्लाम के कानून को बदलना चाहिए।
क्यों पूछा? वो उस तकरीर में उसने अपने कहा कि कुछ बदलना चाहिए, इसलिए कि पुरानी कुर्सियां जब होती हैं तो नई कुर्सियां वजूद में आती हैं, लाउड स्पीकर पुराना होता है तो नया लाउड स्पीकर वजूद में आता है, कापियां फट जाती है तो नई कापियां वजूद में आती हैं, पुराने मकानात गिर जाते हैं तो नए मकानात बनाए जाते हैं। जिस तरीके से तमाम चीजें पुरानी होकर नई चीजें लाई जाती हैं, इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम को भी हालात और नजरियात के साथ कुछ बदलना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग, कम्युनिस्ट ख्याल के, शिया ख्याल के लोग ऐसे ऐसे एतराजात इस्लाम के ऊपर कर जाते कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए। 10-15 मिनट का टाइम मुझे भी मिला, मैंने कहा वाकई बदलना चाहिए, बहुत अच्छी बात मेरे दोस्त ने कही, लेकिन ये तो बताओ कि इस्लाम एक कुदरती निजाम है और कुदरती निजाम के अंदर कोई चीज तुम्हें बदली हुई नजर आती है? कहने लगे यहां मिसाल से समझाइए, जैसे मैंने मिसालें दी। मैंने कहा एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। बताओ सूरज हमेशा पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, यह कानून भी तो पुराना हो चुका है। अब शायद तुम्हारी अकली कसौटी के मुताबिक पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबना चाहिए। मैंने कहा यह हमेशा होता है कि सेब का पेड़ हमेशा सेब देता है और अंगूर की का दरख्त हमेशा अंगूर देता है, अब शायद अंगूर से अमरूद और सेब से आम पैदा होना चाहिए। यह कानून भी तो पुराना हो चुका है। कौन से उसूल और ज़ाब्ते बदल गए कुदरती निजाम के अंदर? मैंने कहा मां की पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होकर मरता है, तो क्या अब लगता है शायद तेरी खोपड़ी के मुताबिक और तेरी कसौटी के मुताबिक मां के पेट से पहले बूढ़ा पैदा हो, फिर बच्चा हो, फिर जवान होकर मरे? कौन सा उसूल बदल गया? हमने कहा जाओ ये तो कुदरती निजाम था जो बदला नहीं जा सकता, तुम अपने मैथमेटिक्स के उसूल को पढ़ लो, जाओ BUMS करते हो तुम, MBBS करते हो तुम, लॉयर बनते हो तुम, एडवोकेट बनते हो तुम, जाओ अपने टीचरों से कहो कि बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहे हो 2-2 4 और 4-4 8, अब ये कानून बदलो, अब 2-2 3 और 3-3 5 करो। जब तुम्हारे टीचर अपना कानून नहीं बदल सकते, अपना उसूल और ज़ाब्ता नहीं बदल सकते, इस्लाम के बदलने की तुम बात करते हो? इस्लाम के बदलने की और इस्लाम में चेंजिंग लाने की तुम बात करते हो? जिस तरीके से ये कुदरती निजाम नहीं बदले जा सकते, उसी तरीके से इस्लाम भी एक कुदरती मजहब है, कुदरती निजाम है, कुदरती कानून है। इस कानून के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ये तब्दीली करो तुम, सबको बना के भेजा था भाई भाई एकम मित्रम मस्ती, सब मित्र हैं, सब भाई भाई हैं। मनुस्मृति में मनु जी बोले नहीं, ब्रह्मा ने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से हरिजन को पैदा किया। ये बदलो तुम, बदलता है आपका कानून। यहां हम लोगों का कानून वो कानून है कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया तो बेहतरीन अंदाज से कह दिया कि हम नाजिल कर रहे हैं और हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी और मेरे नबी की। एक फजीलत यह है कि तमाम नबियों को जो किताबें मिली वो किसी हद तक अपने अपने वक्त तक के लिए थी, बाद में मनसूख कर दी गई, लेकिन मेरे नबी का एक शर्फ और एक फजीलत, एक बढ़ोतरी यह है कि एक ऐसी किताब मिली जो खुद मौजिजा है, जो कयामत तक नहीं मिल सकती और न कोई उसके अंदर एक जबर और जेर की जो है आमेजिश कर सकता है। उसमें एक लफ्ज अपनी तरफ से न मिला सकता है और न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है और न घटा सकता है। ये शर्फ और ये फजीलत भी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। अरे कुरान करा यकरो के बल पढ़ना, कुरान आया ही पढ़ने के लिए है और अल्लाह के नबी को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी उस किताब की तिलावत करो जो नाजिल की गई आपकी तरफ, उहिया इलैका जो वही की गई आपकी तरफ, जो उतारी गई आपकी तरफ, ऐ नबी उस किताब को पढ़ो। असल में तला यतलू का लफ्ज आया, तला यतलू के माना होते हैं पीछे पीछे चलना। तला यतलू का लोगवी माना होता है पीछे पीछे चलना, यानी कुरान के पीछे पीछे चलो। वो तुल्लू इंपरेटिव सेंटेंस पहले अम्र है, यानी कुरान में क्या लिखा पहले पढ़ो, उसके बाद भी उस पर अमल करो। और बाज हमारे अहले इल्म हजरात ने लिखा है कि तिलावत, उतलू का लफ्ज तिलवुन से मुश्तक है और तिलवुन ऊँटनी के उस बच्चे को कहते हैं जो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। अरबी जबान में तिलवुन ऊँटनी के उस बच्चे को कहा जाता है जो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। तो जिस तरीके से ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, तो भी कुरान के पीछे पीछे उसी तरीके से चल, यानी कुरान की ताबेदारी कर। ये ताबीज के लिए नहीं आया मुर्गे के खून से लिख के लटकाओ अपने गलों में, ये उसके लिए नहीं आया दो आदमियों में लड़ाई हो, चल तू सच्चा कि मैं सच्चा, चल मस्जिद में तू उठा ले कुरान या मैं उठा लूं कुरान। लोग कुरान की कसमें तक खा डालते हैं। कुरान उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, जिस तरीके से ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलकर ताबेदारी करता है, और अगर वो उसने ऊँटनी की ताबेदारी को छोड़ दिया तो खतरा है कि कहीं भेड़िया ना खा जाए, खतरा है कि कोई दूसरा उसको उचक न ले। इसी तरीके से अगर तूने कुरान की
تابے داری کو چھوڑ دیا, قرآن کی اہمیت اور اس کے فضیلت کو اگر تو نے چھوڑ دیا, اس کے تبرک کو اگر چھوڑ دیا, تو اتنا یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ تیرے اوپر دوسری قومیں غالب آ جائیں. اور آج وہی ہے, وہ بدو عرب کے وہ بھینس و بکریاں چرانے والے جو کچھ نہیں جانتے تھے, اسی قرآن کریم پر عمل کرنے کی بنا پر ایک جو ہے حکومت کرنے والے بن گئے, عزت و شرافت والے بن گئے. ایسے بنے کہ کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی ان سے ڈرنے لگیں, ان کے بادشاہ بھی خوف کھانے لگے. اور عمر فاروق کی وہ تلوار جو خون میں سنتی تھی, آج حق